Welcome to class 12th History chapter 4th Thinkers Belief and Buildings. Cultural development between 600 BC to 600 AD. Teachings of Buddha. Actually, dear students, in last classes we have discussed about Jainism and the founder of Jain religion, and he was Mahavir Swami. Today we are going to discuss about the teachings of Buddha and the question of enlightenment of Lord Buddha's. We will also look about lives of Buddha. So, dear students, if we talks about Lord Buddha, so Buddha was one of the most influential teacher of his time. सबसे ज़्यादा influential teacher थे अपने समय के, and his messages spread across the subcontinent and beyond through Central Asia, even China, Korea, Japan, and throughout the Sri Lanka, across the seas of Myanmar, Thailand, and इंडोनेशिया. बच्चों हम बात करें अगर लॉर्ड बुद्धा का, तो उनकी जो मैसेजेस थे, उनका जो टीचिंग्स था, इट वाज स्प्रेड अक्रॉस एशिया टू चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. In second or third chapter we were discussing about, as you know, the great king of modern dynasty, the Ashoka the Great. Actually, he had many sons, and King Ashoka sent his son Mahendrapal to Sri Lanka for the preaching of Buddhism. बुद्ध का विस्तार करने के लिए, फैलाने के लिए, उसका प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटे को श्रीलंका भेजा था. If we talks about Buddha, so Buddha was named सिद्धार्थ at birth. बुद्धा का जो जन्म का नाम था वो सिद्धार्थ था, and he was the son of chief of शक्य क्लिन. जो शक्य एक गढ़ था, उसके चीफ का बेटे थे बुद्ध, and he led a sheltered upbringing in the place, detached from harsh realities of life. Actually, he was trying to know the reality of life. What is the actual truth of life? What would be happen after the life, after the death? ऐसे बहुत सारे सवाल बुद्ध के मन में आए. उनका सवाल ढूंढने के लिए बुद्ध परेशान हो जाते हैं. And he undertook a journey into a city which was turning point in his life. एक बार वो शहर में थे, शहर की तरफ जा रहे थे, and that was the turning point of his life. उनकी जीवन में बदलाव आया था, and he was deeply anguished when he saw an old man, a sick man and a corpse. उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार आदमी था, एक डेथ, एक मृत्यु या एक डेड बॉडी उन्होंने देखा. एंड इट वॉज एट द मोमेंट दैट ही रियलाइज्ड दैट डिके ऑफ ह्यूमन बॉडी वॉज इनविटेबल. एंड उस सब से वो काफ़ी परेशान हुए, विचलित हुए. And he realized that decay of human body was inevitable, and he saw a medicant who had come to terms with old age and disease and death and found peace. और उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत सारी बीमारियों से परेशान होता है, बहुत सारे दुख तकलीफ़ें वो देखता है. आफ्टर दैट ही आफ्टर डेथ ही गॉट ऑल द पीस. मृत्यु के बाद उसे शांति मिलती है. Soon after Siddharth left the palace in search of the truth. इस सब बातों को जानने के बाद बड़े परेशान हो जाते हैं बुद्ध, और he left his house palace for truth. सच जानने के लिए he was looking for truth, he was searching for truth, he was seeking for truth. He left his palace, अपना घर छोड़ देते हैं, and he explored many paths including bodily mortification. बहुत सारे विचित्र घटनाएं उस प्रोसेस में उन्हें देखने के लिए मिलती हैं. And he abandoned the extreme part and meditated for several days. बहुत सालों तक उन्होंने अपना
आपको त्याग कर बहुत दिनों तक तपस्या किया एंड फाइनली अटेन एनलाइटमेंट, और आखिर में उन्हें दर्शन या कहें कि जो नॉलेज होता है एनलाइटमेंट ज्ञान प्राप्त होता है, एंड ही केम टू बी नोन एज बुद्धा और द एनलाइटेड वन। और इस सब के बाद उनको सिद्धार्थ के जब बजाय बुद्ध के नाम से जाना गया या एनलाइट वन के नाम से जाना जाता है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही थॉट धम्म और पाथ ऑफ राइचस लिविंग, और अपने जीवन भर वो बुद्ध साहब धम्म का रास्ता अपनाते हैं और लोगों को इस बारे में समझाते हैं। सो इफ वी टॉक्स अबाउट द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, सो सुत पिटक कंटेन्स द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन द फॉर्म्स ऑफ स्टोरीज। सुत पिटक में बुद्ध की कहानियाँ, बुद्ध की टीचिंग्स को कहानियों के रूप में दिखाया गया, एंड फ्यू स्टोरीज ऑल्सो डिस्क्राइब हिज miraculous power, and others suggested that Buddha tried to convince people through reasons and rather through display of supernatural power। बहुत सारी कुछ स्टोरीज में हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि लोगों को बुद्ध ने अपनी बातों को रीजन्स के साथ बताने की कोशिश की, या ऐसा नहीं है उन्होंने किया कि बहुत सारा सुपर नेचुरल पावर लोगों के सामने दिखाया हो। Let's discuss about man teachings. If we talks about man teachings of Buddha, so he believed that the world is transit, anika and constantly changing। उनका मानना था कि वर्ल्ड चेंज होता है लगातार, and it is also soulless anatta as there is nothing permanent or eternal in it। उनका मानना था कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। Within this transient world, sorrow यानी कि दुख is इंटरेस्टिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दुखों से मानव जीवन भरा पड़ा है। एंड इट इज़ द फॉलोइंग it is by following the middle path between severe pains and self-indulgence that human beings can rise above these worldly troubles। वो एक मिडिल में बात की बात करते हैं कि मिडिल मार्क की बात करते हैं कि इस सबसे इंसान अपने एफर्ट से ही अपने तमाम दुखों से सौरों से छुटकारा पा सकता है। सो इन द अर्ली फॉर्म्स बुद्धिज्म वेदर और नॉन गॉड एग्जिस्टेड वॉज इररिलेवेंट। पहले इस बात पे शुरुआत होता है था उनकी कहानी, उनकी टीचिंग्स का, कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एंड बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ड्स एज क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस rather than डिवाइन origin। वो कहते हैं कि इस सामाजिक संसार में क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस rather than डिवाइन origin किसी इंसान के द्वारा नहीं भी, जैसा माना जाता है कि डिवाइन ओरिजिन जैसा जो कॉन्सेप्ट है उससे अलग उनकी शिक्षाएं थी। एंड दस एडवाइस किंग्स एंड घपतिस टू बी ह्यूमन एंड एथिकल। he was saying that nothing is permanent, each and everything is temporary, so we should behave a very good behavior, our attitude, our behave should be good। पता है कि सब कुछ स्थायी नहीं है। And Buddhism emphasizes literally the extinguishing of the ego and desire and thus and the suffering of those who renounce the world। वो कहते हैं कि whatever we are facing, because they all are human made, हम we are selfish, we are greedy, so we do things for our greedy nature and we face problems। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से हमें दुख का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है। फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा और द बुद्धिज्म, एक्चुअली बुद्धा's last words to his followers were, be lambs unto yourself as all you must work out your own liberation। क्या मीनिंग हो गया इसका? The last word to his followers by Buddha was, be lambs unto yourself as all of you must work out your own liberation। वो ये कहते हैं कि अपने लिए दीपक बनो, क्योंकि आप सभी को अपनी अपनी मुक्ति करानी होगी, अपनी अपनी मुक्ति करानी होगी। What does it mean?
As earlier we were discussing that he believed that one individual person, it can be a man, it can be a woman, can get liberation or salvation by their actions, their efforts. अपने प्रयासों से मुक्ति मिल सकती है इंसान को, ऐसा उनका मानना था. The body of disciples of Buddha or an organization of monks is called संघ. जो ग्रुप्स था डिसाइपल्स का, उसको संघ के नाम से कहा जाता था, जो बॉडी होती थी. एंड बुद्धा फाउंडेड अ संघ. बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी. इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु बिकेम टीचर्स ऑफ दम. जिसमें कौन होते थे? मॉन्क्स होते थे जो रिलीजियस टीचिंग्स देते थे. एक्चुअली दे वर रिलीजियस टीचर्स, or they were giving teachings of dhamma of Buddha. And the monks led a simple life, possessing only the essential requisites for survival. उनको एक सिंपल जीवन जीना होता था. ज़रूरत से रिलेटेड संबंध चीज़ों को ही वो अपने साथ रखते थे, सच एज बाउल टू रिसीव फूड वंस अ डे फ्रॉम द लेटी. जैसे एक कटोरा हाथ में लेके रखना जिसका रिसीव कर पाएँ खाना जिसमें. As they lived on alms, they were known as bhikkhus. उनको भिक्खु के नाम से भी जाना जाता था. किसके नाम से जाना जाता था? They were also known as bhikkhus या भिक्षुस के नाम से जाना जाता था. Initially only men were allowed into the संघ. आरंभ में सिर्फ मेल पर्सन को ही अलाउ किया गया था संघ में आने के लिए. बट लेटर एंट्री ऑफ वेमेन ऑल्सो एडमिटेड. महिलाओं की जो प्रवेश होता था उसको परमिट दे दिया गया था, एडमिट किया गया था. एंड बुद्धास फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू इंक्लूड एज भिक्षुनी. जो बुद्धास की माता जी थी महाप्रजापति गौतमी, उनको सबसे पहले एज अ वीमेन शामिल किया गया था संघ में. And many women who entered the Sangh became teachers of Dhamma and went on to become theirs or respected women who had attained liberation. बहुत सारी महिलाएं फिर धीरे धीरे इसका पार्ट्स बनती हैं जिनको मुक्ति मिलती है और दूसरों को भी इस मुक्ति के संदेश को पहुंचाती हैं. And the Buddha's followers came from many social groups. They were from different social categories, and they included kings, wealthy men, ghapatis, and also humbler folks, workers, slaves, and craft peoples. Actually, there was no fixed categorization in संघ. कोई ऐसा नहीं था कि परमानेंट या पर्टिकुलर एक संघ में लोग एक समुदाय कहेंगे. सभी लोग थे, राजा थे, उनमें वेल्थी सेक्शंस था, गपतीस थे, वर्कर्स थे, स्लेव्स थे, क्राफ्ट्समैन थे. एंड वंस विद इन द संघ ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल, हैविंग शेयर्ड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज ऑन बिकमिंग भिक्षुस और भिक्षुनीज. क्या होता था बच्चों? वट एवर योर सोशल स्टेटस इज नाउ, इफ यू आर becoming a member of Sangh, if you are accepting Buddhism, you have to give up your social status. आपको अपना सोशल स्टेटस को छोड़ना होता था, त्यागना होता था. एंड दे वर ऑल रिगार्डेड एज इक्वल, सभी को समान समझा जाता था. एंड द बुद्धिस्ट संघ विच comprise of bhikkhu and bhikkhunis function on the lines of guns and sanghs where consciousness was arrived at based on discussion. जो इनका बात करते हैं कि बिच्छू बिच्छनीस की बात जब हम करते हैं, मेल फीमेल्स फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट की बात करते हैं, दे वर ऑल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट संघ. सभी बौद्ध संघ का हिस्सा थे. एंड दे पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस. हर एक डिस्कशन में वो पार्टिसिपेट करते थे. सो दे स्टूडेंट दैट दिस ऑल अबाउट बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स. वी विल continue this chapter in next video classes. Thank you बच्चों.